first one that I ended up writing was Madgaon Express. And I wrote it to actually act in it. I wanted to play Dodo's part. You know, there are a lot of content creators that I'm like, oh my God, they're so good. And there are a lot of content creators I'm like, oh my God, they're so bad. But why are they so famous? जैसे हम जब पहले थिएटर करते थे तो वो सब ऐसे ना वह आ गए यह क्या हो रहा है अबे यह क्या होता है सो व्हेन गोगोआगॉन हैपेंड कॉमेडी करनी है यार तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा मैं ना पागल हो तुम लोग कुछ नहीं पता तुमको फिर मुझे पता चला कि ये मैं पागल था मुझे नहीं पता था आरओएफएल पता है सबको क्या होता है अभी नया क्या था वो घोस्टिंग पता है जेनजी किसने किया मेरे को नहीं पता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है कल बताता हूँ देयर इज अ लाइन दैट समबडी हैड टोल्ड मी दैट आई लिव माय लाइफ बाय ही सेड कीप योर वेपन्स रेडी यू नेवर नो व्हेन इट विल बी वॉर उस कमरे में भूत अंदर मत जाना वो बेंचो पहले ही चला जाता है ओ मैं फंस गया मुझे बचा लो भगवान भगवान बोलता है बेंचो बोल के तो गया था Hi everyone. How excited are you about this conversation? Can you hear a cheer? Kunal, first of all, thank you so much for being here. Thank you. So Kunal and I have a very dear friend in common who's also the co-founder of Yuva, Anand Tiwari. And somehow, for whatever reason, we have never actually hung with each other. And this is the first time we're hanging with each other in front of an audience. तो मैं तो ऐसे pretend करूँगा कि हम लोग दोस्ती हैं और तुम भी यही pretend करना. You know, this is actually an AMA session, so we want to actually open it up mostly to the audience. But before that, I want to go and get into some of the questions that people may have asked for you. Okay, you know, the average age of the audience has been today like around between 22 to 23. Do you remember what you were like at that age? What do you mean? I'm still that age. Of course you Mentally. are. हाँ मतलब 23 and a half हो आप 6 महीने इधर उधर है मैं 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ यार 23 साल का था तो मैं I think I was on the sets of Dhol at that point of time. But yeah, and I had no idea what I was doing. It was so weird, you know, because मैं थिएटर करता था और थिएटर में हमको हमेशा ये सिखाया जाता था कि रोल छोटा बड़ा नहीं होता तुम कहीं भी हो तुम you know कर सकते हो बट फिल्म में वैसा नहीं होता भाई ये बात आज समझ में आई तो जब मैंने ढोल की थी तो मुझे यही लगा था कि सब मेरे को मतलब जख्म की थी फिर कलयुग की थी और ट्रैफिक सिग्नल की थी तो बोले सीरियस एक्टर है तो अब टाइप कास्ट हो गया अब सिर्फ सीरियस रोल करोगे तो जब कॉमेडी थी मेरा यार कॉमेडी करनी है यार तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा तो फिर उन्होंने बोला कि 4 लोग हैं तो मैं तो शर्मन जोशी का भी फैन राजपाल का भी फैन तो मैंने बोला मैं तो कर रहा हूँ और सब मेरे को तू पागल हो गया है तूने 2 सोलो किए अभी तू सुपरस्टार कर रहा है तू ये बीच में 4 हीरो क्यों कर रहा है मैंने पागल हो तुम लोग कुछ नहीं पता तुमको फिर मुझे पता चला कि ये मैं पागल था मुझे नहीं पता था बट यू नो इन हाइंडसाइट आई स्टिल फील दैट who makes the rules we make the rules so if we don't break them how will we set new rules so I didn't know I was breaking a rule but I'm happy I did because the kind of love that I get for films like Dhol and Golmaal is unparalleled and I'm very happy that I did it No, I absolutely, and you saw the audience cheer for that also. It's, I think ये हमारी core memories बन चुकी हैं वो फिल्म में. उनका humor अभी भी memes बन के चल रहा है. You know, there is a reality of working in films, and then there is an expectation जो सबको लगता है glamour, glamour, etc., etc. But as someone who's been working in a film industry for so long, what is the reality of working in Hindi films for how many years has it been now for you? stop counting man Yeah. I think 3 decades already Yeah. ये जैसे अब शादी में जब जाते हो ना तो फोटो में शादी कितनी अच्छी लगती है जब ऐसे दिखता है दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है दुल्हन कितनी प्यारी लग रही है वो वहां खड़े कि बहन जो सॉरी 2.5 घंटे से खड़े हैं ये आए जा रहे हैं फोटो खिंचाए जा रहे हैं कब खाना खाएंगे कब घर जाएंगे फिर वो सुहागरात से पहले भी 10-10 लोग आ जाते हैं वो कैसी रही मतलब हालत खराब थी 24 घंटे वहां तो ये वही होता है कि आप बोलते हो अरे यार कितना मतलब बर्फ में साड़ी में शिफॉन की साड़ी में बट उतकी तो फट रही थी ना वहां पे एक्शन और कट के बीच में और जैकेट के बीच में बोलते जल्दी ले ले भाई टेक खत्म कर लेकिन स्क्रीन पे अच्छा लगता है तो वही है थोड़ा बहुत लेकिन यही है कि दूल्हे को भी मजा आता है कि हाँ मैंने वो शेरवानी पहनी थी इतनी महंगी कितना अच्छा लग रहा हूँ फोटो में वैसे हीरो को भी लगता है कि यार मेरे पे सीटी बज रही है और उसी इट्स काइंड ऑफ अ हाई Why did you आप इतने टाइम से एक्टर हो आपने डायरेक्शन क्यों I mean, what was it? कुछ ना कुछ तो cerebral होगा रीजन डायरेक्टर बनने का और एक कभी ऐसा भी होता है कि मैंने इतने साल लोगों की सुनी है अब मैं बताऊंगा एक्टर्स को तुम करोगे अब जो मैं बोलूंगा व्हाट वाज इट फॉर यू व्हिच वाज अ लार्जर मोटिवेशन वाज इट जस्ट आई वांट टू टेल अ ग्रेट स्टोरी और द फैक्ट दैट यू नो आई आल्सो वांट टू बी ऑन द अदर साइड एंड सी हाउ आई कैन आल्सो बी विद एक्टर्स जितना लोगों ने मुझे तंग किया है Yeah, I think it didn't start with something like that. The need always was, I've always liked to entertain people, be a part of stories that are entertaining. If that's not happening, then I used to like make up stories and I always had stories to tell. And when they became a lot and somebody said, "Tu itni sunada likhta kyun nahi hai?"
So I said, okay, then I had to learn the discipline to write. So when Go Goa Gone happened, that became like a gift for me because उस पिक्चर पे कोई किसी को भरोसा नहीं था, कोई उसमें पैसे नहीं लगा रहा था, हमारे पास पैसे थे नहीं, और राज डी के इंग्लिश बोलते हैं, तो वो हिंदी उनको आती नहीं लिखनी, तो उस चक्कर में मैं कहा यार चलो मैं लिखता हूँ, we'll figure it out. तो उस वजह से that became the motivation to learn how to write. And then when I ended up doing dialogues for everybody, I knew that अरे मैं कर सकता हूँ. So that's why then I was like कि when एक्टर की ज़िंदगी में ना जब टाइम होता है तो बहुत होता है, कभी कभी तो बिल्कुल नहीं होता है, कभी कभी आप महीनों साल if you're not happy doing what you're doing, you're at home. So I used that time and I started writing the stories that I had, and the first one that I ended up writing in the humor zone was Madgaon Express, and I wrote it to actually act in it. I wanted to play Dodo's part, and बट फिर वो हिम्मत नहीं थी किसी को बताने की, होता है ना कि अरे अच्छा अब एक्टिंग भी अब लिख भी रहा है, अब सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तो आप खुद ही, और स्पेशली वो मिडिल क्लास वाली बात है ना कि शर्म ज़्यादा आती है, तो शर्म के चक्कर में बताया नहीं बहुत टाइम किसी को, बट दोस्तों को पता लग गया. आनंद एक्चुअली वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट वंस हु काइंड ऑफ हर्ड इट एंड ही सेड यू शुड टेक इट आउट. फिर वो बात फैलती रही और मुझे हमेशा कभी ये पता नहीं था कि आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्ट इट, इवन दो काफ़ी लोगों ने कहा था, तो मेरे को ऐसा भी लगता है ना कभी आपको अच्छा लगाने के लिए कह देते हैं कि अरे हमारा बेटा इतना स्वीट है, इसको हीरो बना दो, तो ऐसे लगता था कि ऐसे तो नहीं बोल रहे. How many of you have seen Madgaon Express? Baki, first thing you have to do first as you go back, watch the film. It is such a fun film. इतनी मजेदार पिक्चर थी, मैं इतना नहीं हंसा हूँ इतने टाइम से. I have missed Kunal this kind of a film on our screen. And one of the things that I really enjoyed in the interviews you gave about it was you said कि एक बहुत ही वायरल क्लिप भी गया था कि जिंदगी में मिलेगी ना दोबारा जैसी पिक्चरें हम लोग नहीं जाते, हम लोग, हमारा यूरो ट्रिप नहीं होता, हमारे गोवा ट्रिप ही होता है, और हमारे गोवा ट्रिप भी दिल चाहता वाले नहीं होते, वो एक्चुअली मडगांव जैसे ही होते हैं. सो कैन यू एक्चुअली पुट अ डिफरेंशिएशन कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और मडगांव एक्सप्रेस में डिफरेंस क्या है ऐसे ट्रिप के अंदर, बिकॉज सब लोग चाहते तो एस्पायर तो उसके लिए कर रहे हैं, बट हमारे साथ मडगांव एक्सप्रेस क्यों हो जाता है? क्योंकि पहले तो जो जगहों के नाम उन फिल्मों में थे वो हमने सुने भी नहीं थे. मतलब स्पेन पता था, टोमाटीना फेस्टिवल नहीं पता था, और वीज़ा नहीं था, और वो भी हो जाए तो पैसे नहीं थे, और अपने पास हो तो दोस्तों के पास नहीं थे. तो फिर ऐसा लगा कि अफोर्डेबिलिटी में क्या हो सकता है. यू नो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली बातें भी हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड स्कोर चलता है जब आप पिक्चरों को देखते हैं. मुझे 100% ये पता है कि आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अफोर्ड भी कर पाएं और वहाँ जाएं, तो जब आप टोमाटीना में भागेंगे और वो या यू नो जब वो बुल फेस्टिवल में आपके पीछे कोई भागेगा तो वो म्यूजिक नहीं बजेगा, अलग सा म्यूजिक बजेगा, लाइक दैट. सो जैसे मैंने कहा कि यू नो आलू प्याज सस्ते होते हैं बनाने, फिल्में महंगी होती हैं, तो यू नीड दैट अपॉर्चुनिटी, बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू वेट. यू कैन ईदर burn yourself out at the wrong time or just hold on, have patience, and that's one of the things, at least in this industry, I'm sure it kind of goes to you know every industry, is that you have to be patient. Nothing is a 10-second reel in your life. Nothing is going to be कि ये साइडेड किया हो गया, अभी इसमें ये वायरल हो गई, यू नो इस ये कल्चर से थोड़ा गड़बड़ भी हुआ है, बिकॉज वी ऑल ट्राई टू एम्यूलेट जो चीज़ वायरल हो रही है, और जिसकी हुई है उसको वो नहीं पता था हो जाएगी, वो खुद सोच रहा है कि ये कैसे चल गया यार, जो मेरे को लगा था चलेगा वो नहीं चल रहा, फिर वो एल्गोरिथम चेंज हो जाता है. इफ यू रियली बिलीव इन व्हाट यू डू एंड यू एंजॉय डूइंग इट एंड यू हैव फन डूइंग दैट, invest in yourself. There is a line that somebody had told me that I live my life by. He said, keep your weapons ready, you never know when it will be war. And it stands true. अगर जब जंग हुई आपके पास हथियार ही नहीं तो आप क्या करेंगे? So never give up on yourself and keep working at what you love doing. Do you remember who said that to you? यार ये अच्छी बात है, मेरे को शक्ल नहीं याद आ रही, आवाज याद है मुझे. I think it might have been Nasiruddin Shah. It might have been, or he might have quoted somebody, but I remember him saying it maybe, yeah. But so that's what I'm saying. So I don't know. Sorry, what was your question again? Was there? I was actually asking from one of your older films. अगर आपकी इतनी सारी फिल्में इतने अभी लोग ना मतलब मुझे तो लूट केस भी बहुत पसंद है, मुझे तो हमें राही प्यार के भी बहुत पसंद है, बट देयर आर ऑब्वियसली these really funny films in between, ढोल हो, गोलमाल हो वगैरह वगैरह, जिसके बहुत सारे मीम्स रील्स बनकर आज भी वायरल हो रहे हैं. हाँ, वो ढोल का है ना, जो उसकी गर्दन पलट जाती है, होता है रावण खानदान, जैकेट उल्टी पहनी है, वो गाने कुछ ऐसे, वो एक भाग जॉनी करके फिल्म की थी मैंने, उसका वो किन्ना सुना, वो तब नहीं चला, वो पिछले 1 साल से इतना फेमस हो गया सडनली गाना.
So I think films are like that, you know, because they hit differently with different audiences. And sometimes we may say कि ये बहुत ही घटिया flop picture है, लेकिन वो over the years television पे इतनी बड़ी हो जाती हैं फिल्में. Like Disco Dancer, for example, it didn't work so much in our country, but Mithun Dada became a star in Russia. So I think that's what the romance of being in films is, because they just live forever. It's our version of staying immortal in so many ways. I'm now going to go to audience questions. I want to ask, for someone who's been giving answers to questions for मतलब जब से आप कर रहे हो तब से आप questions को answer कर रहे हो, what is that one question that people keep asking you that you are just like, again, stop asking this? ऐसा कोई है क्या? यार मैं थोड़ा ना जोन आउट कर जाता हूँ. जैसे मैंने कहा था ना, क्वेश्चन क्या था, तो मेरे को जो सुनना है मैं वही सुनता हूँ, और मेरे को जो बोलना है मैं वही बोलता हूँ. फिर बीच में मेरे को याद आता है इसने पूछा क्या था, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, पूछ लूँ क्या, पूछ ही लेता हूँ, पता नहीं वापस आ पाऊंगा कि नहीं. पहले बुरा लगता था, अब ऐसा लगता है इसको भी कुछ नहीं पता, ये भी नहीं सुन रहा. आधे लोग तो इंटरव्यू में भी ना सवाल पूछते ना, उनका ये होता है 10 पूछ के निकलना है, तो सवाल पूछ के फिर वो अगले पे देख रहे थे. अच्छा, मैसेज पे भी बॉस का देख रहे थे. ओके सर, अच्छा तो फिर हाउ इज इट विद करीना, यू मस्ट हैव ग्रेट फूड नो. अच्छा, तो मैं इसका भी नहीं पढ़ी है तो मेरे को क्यों पढ़ी है, मैं भी बोलता हूँ कुछ भी. Is there a question you feel कि कोई मुझसे किसी को तो पूछना चाहिए क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर कुछ तो होगा ऐसा? कुछ नहीं ऐसा, मैं नहीं चाहता, मैं क्यों अपनी पोल खोलूं. ये नहीं पूछा तूने मुझे, मैं बताता बड़ा मजा आता तुझे. मैं नहीं पूछता. तो ठीक है, नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड द रूल कि मतलब कुछ भी पूछ सकते हो. अगर नहीं आंसर जोन आउट हो जाएंगे, अगर आंसर देना तो जरूर देंगे. बिल्कुल. तो फिर नाउ who has questions? Hi. Hi. Big fan first Thank of you, all. man. So can we expect Go Gone 2? As much as I would. I mean, मेरे हाथ में होता भाई 5 बन चुकी होती है अभी तक. Please. तुमने तो लिखी इसलिए थी एंड में गन ऐसा करके, ओ कि गोवा जल रहा है. बट वो पता नहीं, अब प्रोड्यूस आईपी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो हमारे हाथ में है नहीं. तो जिनके हाथ में, अब वो जब देखेंगे तो बनाएंगे. हम तो, मैं कहा ये अब क्या व्हील चेयर पे आएंगे, हम इतने बूढ़े हो गए इसको भी 10 साल हो गए उस पिक्चर को. What do we know? What have we learned? We know nothing. We learned घंटा. That is the case. Thank you. So interestingly, अब किसी ने point out भी किया था कि this is the year जब Go Gone के trio are all making their directorial films. This is the frustration of them not making a sequel. अब वो zombie picture बनाने लग जाएंगे अगर इसने नहीं बनाई अभी तक. हाय, आजकल जो यंग पीपल हैं वो एक सर्टेन टाइप ऑफ कंटेंट देखते हैं, एक सर्टेन स्टाइल में देखते हैं. तो क्या हम ये जो पैटर्न, ये ट्रेंड्स हैं, ये बड़ी स्क्रीन पे जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो भी ये चीज़ साथ में लेके चलते हैं? कट निखिल, the show that you've made, be a man, yaar. I'm so proud of that show. Thank you. Because professional person outside but a student inside was so proud. And yes, Kunal, so do you keep all of these perceptions? इसने जो कट बोला था ना, इतना अमेजिंग था वो. कट एपिसोड 2, कट बैक 2, अब कहानी आगे. नहीं, बस मुझे यही पूछना है कि आप ऐसे कुछ ट्रेंड्स, कुछ पैटर्न्स, ये बड़ी चीज़ प्रोड्यूस करने, बड़ी चीज़ एज इन बड़े, जब बहुत सारा पैसा लगा हुआ है तो उसमें प्रोड्यूस करने में भी हम ये पैटर्न्स ध्यान में रखते हैं या फिर? Basically, I think the reason she's also asking this question, thank you Vanshika, I think she's asking the question saying that कि हम लोग युवा, overall हम जो content बनाते हैं युवा के अंदर, आपको पता ही होगा, we try to look at what are the issues that young people are going through. हम सोचते हैं mental health है, masculinity है, etc., and then we try to make content around that. As a director now, you know, she's saying that now that you're on the other side of the camera, do you also, especially when it comes to young people, आप सोच रहे हो कि उनको क्या चाहिए? जैसे आपने कॉमेडी बनाई, कुछ सोच के बनाई होगी. यार मैं तो आज तक ये सोच रहा हूँ मुझको क्या चाहिए. मुझे अभी पूरी तरह ये भी समझ नहीं आया. तो पहले मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, बाकी और बकवास वाली बात है. तो मैं नहीं, of course I'm saying there are filmmakers and films that want to cater to a larger and larger audience, and they of course take into consideration ki what will talk to them, right? But I guess there are films in that zone. We still connect to mythology, right? We connect to Raja Ram's story, we connect to Mahabharata, we connect to all of that. So in fact, the biggest films that we are making are mythologies, like Bahubalis and RRRs, if you're connecting to those. So why are we saying that only if you speak to Gen Z now is what it's going to be? So different filmmakers, like if a 23-year-old comes today and he wants to make a film, I can't tell him कि ये क्या है, ये इसका vision है. And you have to believe in what you want to say and not overcomplicate it. So if I have a story where there is a, let's say a 21-year-old in that film, I would definitely, if I'm writing lines for them and I'm writing drama around them, I would definitely want to vet it by a 21-year-old कि यार
रेलिवेंट तो लगे, नहीं तो लगे ये कौन सा 21 साल का बच्चा, हम तो ऐसे बात नहीं करते। जैसे हम जब पहले थिएटर करते थे तो वो सब ऐसे ना, वह आ गए, यह क्या हो रहा है, अबे यह क्या होता है, यू नो। तो आपको वो थोड़ा अपने आप को सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है आजकल, और सबको सब पता है। तो मैं तो कभी रील भी देखता हूँ तो मुझे I mean, to be honest, you know, there are a lot of content creators that I'm like, oh my God, they're so good. And there are a lot of content creators, I'm like, oh my God, they're so bad. But why are they so famous? Maybe they're talking a language that I don't understand. So it's not, I mean, everybody's putting in the hard work. You can't say कि ये तो बड़ा ही NG है, पता नहीं इसको क्यों लोग लाइक करते हैं। कुछ तो है उसमें भाई, उसलिए उसको लाइक करते हैं। अब आप में नहीं है तो आप जल लो उससे, या फिर कुछ नया कर लो अपने अंदर। बिल्कुल। And let me, but you know, since she's spoken about now that she's spoken about Gen Zs, anything? Do you interact much with this generation? Dude, I didn't even know this was called Gen Z. I was very confused. I was like, मैं कौन हूँ? ये तुम मिलेनियल है। अच्छा, और मेरे पहले क्या थे? पता नहीं मुझे। Gen X. Gen X. उससे पहले बूमर होते थे। तो वाई कहाँ गया? हाँ, अभी जेन, हाँ ये वाई मतलब मिलेनियल जेन वाई था एक्चुअली। उनको पता मिलेनियल पता है कि मिलेनियल में पैदा हुए, और जेन अभी जी है, अभी उसके जेन अल्फा आएगा, तो अभी ये चल रहा है। सॉरी, ये कहाँ नामकरण कब होते हैं? ये क्या ऐसे एक दिन ऐसे 8 बजे टीवी बंद हो जाता है और लाइव टेलीविजन पे कोई आता है और कहता है कि आज से तुम जेन जी हो। जेन जी कहाँ से आए? गुड क्वेश्चन। I'm genuinely throwing this question. If you educate me, guys. आई थिंक इन्होंने वही देयर इज जनरेशनल ना 20-20 साल की जनरेशन बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। ROFL पता है सबको क्या होता है, या ये क्या अभी नया क्या था वो घोस्टिंग पता है। जेन जी किसने किया मेरे को नहीं पता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है कल बताता हूँ। चलो I'll take a last couple of questions. I just want to आपकी इतनी clarity of thought है। अब बता मुझे, अब ये मत बोलना कि मैं सोचता नहीं, क्लियरली देयर इज टू इन अ टाइम लाइक दिस, जो इतना लोग सोचते हैं, इतने एंग्जाइटी होती है, ओवर थिंकिंग होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हाउ डू यू रिमेन सो अनकॉम्प्लिकेटेड इन द वे यू लुक एट लाइफ? मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। यह उन दिनों की बात है जब मैं बहुत सोचा करता था, बहुत सोच समझ के बातें किया करता था, फिर भी घंटा कुछ नहीं हुआ। अब मैं बदल गया हूं, फिर भी घंटा कुछ नहीं हो रहा, तो क्या फर्क पड़ता है? I'm not from the Gen Z group, and and it'll be a serious question though. Maybe you can take it, as the closing question, last question of the day, because I don't want to spoil the aura which is already here, the lively aura. This Gen Z is more, present on social media, right? So is there a simple message that you can tell them that, it is not that what you are there on the social media, it is what you are as an individual in your real life. मैंने आपके सामने अगर खीर का डब्बा रख दिया, अब आपके ऊपर है इसका 1 चम्मच खाओ कि पूरा खा जाओ। अगर पूरा खाओगे उल्टी आएगी, बीमार हो जाओगे, तो समझ जाओ ना, अगली बार जब खीर का डब्बा दिखेगा तो मत खाओ पूरा। और अगर फिर खा के बीमार हो रहे हो तो भाई यू आर एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, you deserve to. I don't know, I can't hold your hand and tell you. I also understand this यार, मेरे को भी एक पॉइंट में होता था 1.5 लाख लाइक 10,000 आज अच्छा नहीं लग रहा हूँ, अच्छा पता नहीं क्या है। अच्छा फिर क्या, फिर अभी क्या है ना, इसमें भी घुसने वाले लोग कैसे घुसते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटेलिजेंट पीपल। कैमरा में आपका लुक नहीं है, इफ यू लुक एट द ऑडियंस यू विल एंगेज विद देम। अच्छा जी, अभी भी नहीं हो रहा यार, स्माइल कर दीजिए आप। तो ऐसा है कि वो खीर है ना, अब उसको कैसे खाना मैं देख लेता हूँ। अगर मुझे जमा नहीं जमा हटा, तो वही है, वो ट्विटर था, अब इंस्टाग्राम है। अब इंस्टाग्राम बहुत लंबा चल गया है, अब कुछ नया आएगा तो उसको भी हटा देंगे हम। बट द थिंग इज आई डोंट वांट टू से दिस इज बैड, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी वही है। अगर मैं बोलूंगा ना, वो हॉरर पिक्चरों में यही होता है ना, उस कमरे में भूत है अंदर मत जाना, वो तो पहले ही चला जाता है। उस कमरे में बेटा मत जाना, नहीं मैं तो जाऊंगा। ये किताब मत पढ़ना इविल डेड में, मैं तो बजाऊंगा। मैं फंस गया, मुझे बचा लो भगवान। भगवान बोलता है बैंचो बोल के तो गया था, तू इंसान ही नहीं सुन रहा, मैं क्यों सुनूं तेरी। मेरे को ऐसा लगता है कि बोलने से
तो इतनी अच्छे अच्छे दिग्गज लोग बोल रहे हैं, मैं तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। सेलिब्रिटी को खामखा सर पे चढ़ा रखा है, हमको क्यों पता सब कुछ, हमको नहीं पता, हमारा काम है आपको एंटरटेन करना। अब हम थोड़ा और उसके आगे जाके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ये सब बोलने की। तो अब क्या होता है कि हम सही बोले तो हमारी तारीफ करके हमको सर पे चढ़ा देते हैं, कोई गलत बोल दे तो उसको गाली पड़ती है, फिर वो सोचता रहेगा अब मेरा इंस्टाग्राम हैक हो जाएगा, अब मेरे को गालियां पड़ेंगी। कमेंट डालने से पहले डरता है आदमी, फोटो डालने से पहले डरता है आदमी, मैं क्या खा रहा हूँ इसमें कोई गलत नहीं बोलते, नॉनवेज क्यों खा रहा है तू, तेरे को जानवरों से प्यार नहीं है क्या, है मगर बचपन से खा रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फोटो क्यों डाल रहा है, पिक्चर आ रही है यार, कैसे बेचूंगा, लोगों को कैसे बताऊंगा, क्योंकि जब मैं मीडिया में था तो वहां पे वो पैसे मांगते फ्रंट पेज पाने के, अब मैं अपने इस पे अपनी फोटो डाल रहा हूँ, अब मैं शर्ट उतारता हूँ तो ज्यादा लाइक आते, तो मैं क्या करूं, सब मजबूर है, समझ रहे हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ इनसिक्योरिटी हमारे अंदर इनग्रेन्ड है कहीं ना कहीं, तो उससे हम वैलिडेशन ढूंढते हैं, लेकिन थक जाएंगे उससे। वो एक दिन आता है सबके, जब वो हम अपने रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप से डिलीट कर देते हैं जब वो परेशान करने लगते हैं, तो ऐसे इंस्टाग्राम भी डिलीट हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। मैं खुद सच्ची में कभी परेशान हो जाता हूँ कि मेरे को नहीं करना है ये, फिर भी करना पड़ता है, तब सही है अब गलत है, तब क्या है मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। कहीं जब मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये बहुत गलत है, ये इंसान जो बातें कर रहा है ये बहुत गलत है, लेकिन हमारा संविधान मुझे कोई इजाजत नहीं देता कि मैं जाके उसको थप्पड़ मार दूं, क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब वो गधे हैं जो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को पता नहीं क्यों हीरोइज्म बना के घूम रहे हैं। तो एज अ फादर आई जस्ट फील स्कैर्ड आल्सो कि if my kid or my known people are going to believe in this bullshit that this person is selling, I would rather say मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है मेरे गलत आंसर को कोई सही मान ले यार, मुझे खुद ही नहीं पता। Perfect. Yeah. Very well said. Very well said. I think on that note, I just honestly speaking, Kunal, last time मैं इतना हंसा था जब मैंने मडगांव देखी, और उसके बाद हंसा हूँ आज इतना, but more than anything else, I think, there is within your humor, there is such real insight, there is such a beautiful way of living life in a way that you're true to yourself, that you're honest to yourself, that you are going up, taking risks, punting on yourself. और वो चाहे अच्छा है बुरा है, लोग तो जो बोलेंगे, आपको अपने दिल से जो करना है वही करो. That's the takeaway that I have from this conversation. You have been such an amazing Thank you. speaker today. Thank you. Absolutely. मैं भी काफी टाइम से सुबह से यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे लिए भी वर्थ इट हो गया था यहाँ पर. But I hope it was the same for you. Can we have a really large, big round of applause for him? Yeah, beautiful.